can share with me your experience regarding your admission process or anything related to MBA. As of now, uh, doing MBA is a dream of many students because doing MBA is not an easy job. It requires a lot of money. It also requires understanding about the field of commerce, and as such, it also requires the desire. Some of you might not have thought about this particular field earlier, but since now you have taken admission in this particular program, now it is up to you how you get the maximum benefit from this particular program. So as I was telling you yesterday, now it's 12:10. I am starting my session. Once again, very good afternoon to one and all. I am Professor Amar Gupta, faculty, corporate trainer, and a mind healer coach who is working with this institute for last almost 10 years. I am having an experience of 14 plus years in academics, and I am an approved assistant professor from University of Pune, working for International Institute of Management Science Chinchwad. It's my pleasure to interact with you today on this particular occasion. Yesterday, I gave the insights about the field of marketing. I told about why marketing is important. Now, as you all know that when we enter into a market, we see a lot of products and services around us. So we feel that ki everywhere there is marketing. Yes, there is marketing which is involved, but marketing itself has got a lot of other activities which you must understand through this particular subject. And next time when you revisit such kind of stores, you will have better understanding about the particular marketing activities. And then you can make a comparison between the activities which the companies or the which the competitors are doing. So as a management student, it comes in our mind why marketing is important. Why should we study marketing? Because if you don't know what is the importance of any field, it is irrelevant to study that particular subject. So as we talk about this particular marketing is very much important because it helps you to sell your products or services. The bottom line of any business is to make the money, and marketing is an essential channel to reach that goal. So if you want to make a money in the business, you have to believe in the CCD approach. Now what is CCD approach? Remember this CCD approach. C stands for creating, another C stands for communicating, and the D stands for delivering. Then, if you can sum up with this, we can say that marketing is all about creating, communicating, and delivering value to the customers at a profit. So, whatever activities you are doing for the customers, you are doing it for the profit. But you cannot earn the profit in the long run if at all you are not in a position to create and deliver and communicate value to the customers. So yesterday I gave you n number of examples. For example, if someone is having an eyesight problem, आप में से कुछ लोग होंगे जो चश्मा लगाते हैं, अगर किसकी नजदीक की नजर खराब है और आप उसको दूर की नजर खराब का अगर चश्मा दोगे तो उसके लिए कोई वैल्यू है उस प्रोडक्ट की? नो. सेम अल्टरनेटिवली अगर मैं बोल सकता हूं कि आपके घर में कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, कुछ लोग ओमनिवोरस होंगे, जो वेज नॉन वेज जो भी मिल जाए वो खाते हैं. अगर आप प्योर वेजिटेरियन को नॉन वेज मील ऑफर करोगे तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की उस फूड की कोई वैल्यू होगी? नो. सो मार्केटिंग का मतलब क्या है? टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर्स, एंड दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट द निश मार्केटिंग अप्रोच टुडे. निश मार्केटिंग अप्रोच क्या है? जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तो बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम्स में गुड और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता था. देन वी फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन. देन वी हैड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द प्रोडक्ट. Then we had started focusing on the sales, and then came the marketing. So in the marketing era, everything was determined and decided by the customers. So customers were considered as the king, who were the center point of all the marketing strategic decision making. Now, as I was telling, that marketing is important because you have to sell your product and services. Now, today customers have lot of other substitutes available in the market. Earlier, the customers were not having such substitutes. Now, let's take an example of mobile phone. When mobile phone were launched in the market in India in the early 2000, between 1990s to 2000, that time very few brands were there. But today, more than 52 brands are available in India. So a customer is having multiple choices amongst which he can choose or she can make choice of a particular brand or particular variant. And that is why marketing task is very important, because
You have to catch the attention of the public. You have to convert those prospects into customers. You have to retain them, and further you have to get more customers with the help of the existing customers, because you know that if you invest more money on getting new customers again and again, then your cost will be high. So rather than investing more money in acquiring new customers, it is always good to retain the existing customers and then focus on the new customers, then focus on the expansion of the market. So marketing is really very important tool. And how it works is, it just simply work on the fundamental that it focuses on the needs and wants of the customers. It does not focus on the product initially. It focuses on the customers. And now when you focus on the customers, your main job will be to understand their difficulties, their day-to-day problems, and to satisfy their problems with the help of a product or a service. For example, insurance. Now, in case of insurance, you have seen that those who get the lifestyle related diseases like cardiovascular diseases, diabetes, hypertension, they were the ones who did not get the insurance benefit earlier. But today, because of the IRDA's initiatives, that is Insurance and Regulatory Development Authority of India, as well as the initiatives which are taken by many companies, today such people are also covered under insurance, although they are paying some little bit higher amount of premium as compared to normal healthy persons. But still, you can say that they are covered. Earlier, they were not covered. Today, even the cancer cover is been given by way of insurance to such kind of people. So what the companies have identified was the main problem, the needs and wants of such kind of people, those who were affected and those who were suffering from such kind of diseases. And with the help of their product, they had solved their problems. Now, with this particular approach, the company has created value for the given set of customers, and with this, they have also achieved the profitability goal. So any company today cannot achieve the objective of profits if at all they are not focusing on creating value for the customers. Now, if there is another example, suppose someone in your family is having this particular diabetes and you are bringing sweets at home. Do you really feel that the person would be able to enjoy the sweet just like a normal healthy person can do? Probably not. So what the sweet houses have done, they have come up with zero calorie and zero sugar made sweet products. So with this, they are now targeting even to such particular class of customers, those who were earlier not eating the sweets because of such kind of problems. Priyanka, where are you looking? प्रियंका, प्रियंका, दीवार की तरफ कहाँ देख रही हैं प्रियंका? your your Sorry, eyes sir. should be towards. Okay, huh. Why I have said that you should open up your camera, because I would see whether you are having attention towards this particular class or just for the sake of attending you are attending. Okay, so right now there are 34 students as I can see, and I think some more students will be joining. So I was telling you about how to be creative. Now, if you have to deliver value to the customers, you have to be very much creative today. Creative in terms of your product on the offerings. Because if you won't offer anything which is new to the customers, which is creative and which is unique, probably the customers will get just dissatisfied after some time, or probably they will lose the interest. Now, take an example, mobile phone. Everyone is using smartphone today. The smartphone which you are using today, even if it is having the advanced technology, if it is having the advanced cutting edge features comparison to the other products which are available in the market, after some time you will get bored from this particular product totally, and then you will look forward to just change your brand. So consumer mindset is not fixed, इट इज़ वेरी मच डायनेमिक इन नेचर. आज आप सुबह से लेकर शाम तक आप देख लीजिए, आप ब्रेकफास्ट में कुछ पसंद करते हैं, लंच आते आते आपको लगता है कि कुछ और खाया जाए, शाम आते आते आपको लगता है कि कुछ और खाया जाए, और अगर आप फैमिली के साथ कहीं निकल जाते हैं तो आपकी पसंद और चेंज हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर बिहेवियर किसी एक चीज़ में, अगर किसी एक प्रोडक्ट के केस में भी लेंगे, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट. ना आपके घर में आपने देखा होगा किसी को सेंसिटिव टीथ की प्रॉब्लम है, सेंसिटिव टीथ, तो वो लोग क्या यूज करते हैं, सेंसोडाइन यूज करेंगे, या कोई ऐसा टूथपेस्ट यूज करेंगे जिसकी वजह से उनको गम्स को जो सेंसिटिव टूथ की जो प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ब्राइटर वाइट शाइनिंग टीथ चाहिए,
तो वो क्लोजअप एंड जेल बेस्ड टूथपेस्ट यूज करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके घर में ओल्ड एज या मिडिल एज, जिनको लगता होगा कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट सबसे बेस्ट है, तो वो पतंजलि और वे ये अपना कोलगेट का वेद शक्ति और बाकी सारे ब्रांड यूज करेंगे। तो आपने देखा आपके घर में केवल एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज टूथपेस्ट, लेकिन उसमें भी अलग अलग ब्रांड्स लोग यूज कर रहे हैं। अलग अलग लोगों का कंज्यूमर परचेज बिहेवियर है जो एक तरीके से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज everyone is having different set of needs and wants, and everyone is having different set of derived behavior. Your buying pattern is entirely different. Now you can make a comparison even in case of automobile vehicle also. आपकी फैमिली छोटी है तो आपको लगा कि छोटी कार ले लूं। कुछ लोगों की फैमिली छोटी होती है लेकिन उसके बाद भी वो एसयूवी कार लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है स्टेटस सिंबल है। कुछ लोगों को लगता है कि यार कार की क्या जरूरत है, घर में अकेले हैं, चलो बुलेट ले लो। बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स हैं जो कार की बजाय अपनी क्रूज बाइक्स प्रेफर करते हैं। तो ये कंज्यूमर पर बिहेवियर है। और अगर आपने कंज्यूमर को बाइक जिसको खरीदना है उसको बोला कि तू कार खरीद ले, तो उसको मजा आएगी क्या? उसके लिए उसकी कोई वैल्यू होगी क्या? नहीं होगी। तो मार्केटिंग यहां से स्टार्ट होती है। अगर आज आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सोर्सिंग डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप एक ही काम कर रहे हैं कि कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है। और वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ भी मार्केट सर्वे हुआ, जो कुछ भी रिसर्च हुई है, उसके बेसिस पे आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपकी कंपनी में चालू है। और ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए आपको मार्केटिंग में क्रिएटिव लोग रखने की बहुत जरूरत है, जिनकी क्रिएटिविटी से आप कुछ नया कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आपको क्लिक हो जाएगा। आपको पता है जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, ड्यूरिंग लास्ट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइम, देयर वाज एन एड ऑफ सैमसंग विच वाज वायरल एट दैट टाइम। बह चला मैं बह चला, उसमें एक सीन दिखाया गया था कि सैमसंग कंपनी के टेक्नीशियन को एक लड़की फोन करती है। शी वॉज जस्ट अबाउट 10-11 ओल्ड गर्ल, एंड शी कॉल्ड दैट टेक्नीशियन एंड शी रिक्वेस्टेड द टेक्नीशियन टू कम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड टू रिपेयर द टीवी। जब वो बंदा वहां पे पहाड़ियों से होकर, रास्तों से होकर गुजरता है, वैली से होकर, वो जिस जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वो सारे लोग ब्लाइंड है। वो एकदम से शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि ये लोग ब्लाइंड है तो टीवी कैसे देखेंगे। तभी उसमें से वो एक लड़की बोलती है कि आज आइडल शो आने वाला है और इसमें ये जो सिंगर है वो मेरा फ्रेंड है, आप भी बैठ के हमारे साथ में सुनिए। वो ऐड आने के बाद सैमसंग कंपनी का जो सेल था उसने जे कर्व ऑब्जर्व किया। जे कर्व, जे मतलब सेल इस तरीके से डाउन हो रही थी और एकदम से ऊपर चली गई, दैट वाज द जे कर्व। तो ये लाइफ में जे कर्व लाने के लिए आपको इमोशनल बॉन्डिंग के साथ साथ प्रोडक्ट में ऐसा कुछ चेंजेस करना होता है कि आप कस्टमर के लिए वैल्यू डिलीवर कर सके। अभी रिसेंटली बजाज का एक ऐड आया, आपने वो ऐड अगर देखा होगा तो आप जरूर देखिए। बजाज के ऐड में क्या चेंजेस किए गए हैं। उसमें आर्मी सोल्जर का केस दिखाया गया है कि वो जाना होता है उसे पोस्टिंग के लिए, और वो रास्ते में उसको कोई गाड़ी नहीं मिलती, दूसरे साइड से एक आदमी आ रहा होता है, उसको वो उसको गाड़ी में लिफ्ट देता है और उसके बाद लिफ्ट देने के बाद आगे उसको छोड़ता है जबकि उसका इंटरव्यू होता है। तो ये इस तरीके से आजकल इमोशनली इंगेज करने वाले वीडियोस और कंटेंट क्यों डिलीवर किया जा रहे हैं? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। दिस इज बीन डन टू engage योर पोटेंशियल ऑडियंस। सागर, आई कैन नॉट सी यू। सागर, आपका केवल हेयर्स दिख रहे हैं मुझे। सो गए क्या सागर? सागर नींद आ गई? हेलो सागर। नहीं सर, नहीं सर, ऑफिस में हूँ ओके मैं। ओके, आप ऑफिस में, ओके, प्लीज कंटिन्यू योर वर्क। ठीक है। यस सर। ओके सो आज मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मार्केटिंग कहां से आया? मार्केट से आया। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक वो प्लेस है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं टू क्रिएट सम एक्सचेंजेस विच इज ऑफ वैल्यू टू ईच एंड अदर पार्टी। सिंपल डेफिनेशन, market is a place where the buyers and sellers meet together to create some exchanges which is of value to the other party. Now there are some important terms which have come under the definition, which you have to notice. First, it is a place. मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एक ऑफलाइन प्लेस हो। आज आज ऑनलाइन प्लेस भी है। फॉर एग्जांपल OLX, क्विकर, Amazon, then you have Flipkart, then you have lot of other websites. So what you are doing is you are trying to engage in some particular transaction. You are paying money
which is of value to the other party. In return, you are getting the goods and services. So market can be defined in a very simple language as a place, can be virtual, can be offline, where the buyers and seller meet and they exchange some particular goods and services which is of value to each other. अगर फॉर एग्जांपल श्रीलंका से आपका कोई फ्रेंड आया और वो यहां पर आके शॉपिंग करने गया, रास्ते में उसने देखा कि चलो केले बहुत पसंद आ रहे हैं मुझे, अब मैं केले वाले के यहाँ से केला खरीदता हूँ, और एक वो जो है वो गांव करी है, वो केले बेच रहा है, बनाना सेल कर रहा है, उसको उसने कहा केले कितने के दिए, वो बोलेगा कि 50 रुपए डजन, वो बोलेगा कि 50 रुपए मेरे पास श्रीलंकन करेंसी है, लेगा क्या? तो आपको क्या लगता है एक गांव का आदमी जिसको कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, वो केले बेच रहा है, वो उसकी करेंसी को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। आपको किसी को जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको वही चीजें एक्सचेंज करनी है जो सामने वाली पार्टी के लिए वैल्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओंकार को मोनिका ने बोला कि ओंकार इस बार मैं तुझे बर्थडे में एक रिमोट वाली कार गिफ्ट करूंगी और बदले में तू मुझे एक अच्छा सा एक नेकलेस गिफ्ट कर, क्योंकि मोनिका के लिए तो वो नेकलेस बहुत अच्छा वैल्यूएबल है, बट ओंकार के लिए आपको लगता है इस एज में रिमोट की कार उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? जब एम्बिशंस चेंज हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है लाइफ में, तो यहां पर एक्सचेंज नहीं हुआ। तो मार्केट क्या है? बेसिकली एक वो जगह है जहां पर आप किसी से कुछ ऐसी चीज एक्सचेंज कर रहे हो जो सामने वाले पार्टी के लिए वैल्यूएबल है। अब वो मार्केट कौन सी हो सकती है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, आपके शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेसेस हो सकते हैं, या रोड साइड आप कहीं पर भी रुक गए, आपने कहा कि भाजी मिल रही है खरीद लूं, वो भी एक मार्केट हो सकती है। हो सकता है कि दैट मार्केट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय वेरी फ्यू पीपल। Then again, market is been classified into two categories. First is called as organized market and second one is called as unorganized market. Organized market का example है malls, हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट। वहां पर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स टाइप के मिलेंगे, हर एक पर्टिकुलर चीज का डिपार्टमेंट है। परफ्यूम का अलग सेक्शन है, एक्सेसरीज का अलग सेक्शन है, बैग्स का अलग सेक्शन है, अपरेल का अलग सेक्शन है, राइट? ग्रोसरी का अलग सेक्शन है, क्रॉकरी आइटम का अलग सेक्शन है। तो ये ऑर्गेनाइज सेगमेंट है। Organized segment in India contributes to hardly 13% of the total retail which exists in India, while the remaining 87% is being contributed by the unorganized sector. Unorganized sector में क्या क्या आते हैं? वेजिटेबल मार्केट आती है, किराना स्टोर, ग्रोसरी वाला, आपके नजदीक में पान वाला, होटल्स छोटे छोटे, ये सब अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेगमेंट में बेसिकली क्या है? प्रॉफिट बहुत है। आप पहले देखो, पहले का एग्जांपल, मूवी होती थी तो गांव में लगा दी जाती थी एक बड़े से पर्दे पे और लोग मूवी देख लेते थे। लेकिन आज पुणे में ही ऐसे मॉल्स हैं जहां पर आपके पास में बढ़िया लग्जरी है, आप आराम से रिक्लाइनर चेयर पे अपना, जिस तरीके से बीच में आप आराम से लेट के देखते हो उसी तरीके से वो चेयर है, आप बटन दबाएंगे चेयर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, आप आराम से मूवी देखेंगे और साथ में पॉपकॉर्न और बाकी चीजों का मजा लेंगे, राइट? तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्कोप ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा, बिकॉज यहाँ पर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और ये वैल्यू एडिशन का पैसा आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू कैफे कॉफी डे और इफ यू गो टू बरिस्टा, यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द कॉफी। कॉफी की कीमत कुछ नहीं है, आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? यू आर पेइंग फॉर द एम्बियंस, यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज। और ये क्या चीज है? यही वैल्यू एडिशन करती हैं, राइट? अगर आज अंतेश्वर, अगर आज आप एक सुपरस्टार बन जाते हो और आप सुपरस्टार बनने के बाद आप जहां पे आप अपने गली नुक्कड़ में कहीं पर भी अगर गणपति का फेस्टिवल होता है, आप डांस करते हो, आपको कोई पैसा नहीं देता, लेकिन कल को आपको उसी जगह पे बुलाने का, आपको आपके ही गांव के लोग कुछ एक अच्छा खासा अमाउंट देंगे। क्यों? बिकॉज यू विल बिकम अ ब्रांड। आपके आने की वजह से उनके पर्टिकुलर फंक्शन में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो ये वैल्यू एडिशन जो है ये मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। तो ये मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग फंक्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब क्या है? यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर्स रिगार्डिंग द नीड्स, wants, desires, and based on that you predict the demand for the product or the service. Information आपको कलेक्ट करनी है। मार्केट टू मार्केट द इंफॉर्मेशन विल बी डिफरेंट, मार्केट टू मार्केट द क्राइटेरिया विल ऑल्सो बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट या कैंडी बना रहे हो
तो उसके लिए इंफॉर्मेशन जो आपको कलेक्ट करनी है वो सैंपल रिस्पॉन्सेज या सैंपल जो होंगे दोज वुड बी द किड्स एंड द टीनेजर्स। अगर आपने एक कॉस्मेटिक ब्रांड बनाया तो आपके केस में जो आपके सैंपल रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, जो पॉपुलेशन होगी, वो पब्लिक होगी दोज हु आर यूजिंग द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, राइट? डू यू अंडरस्टैंड पूजा, उद्देश्य एंड हरीश भाई, मोनिका? अभी तक मैंने जो भी बताया वो आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। सूरज समझ में आ रहा है? यस सूरज, सर। ओके ओके। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज आपके पास में राइट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जगह पर नहीं पहुंच सकते, राइट? और इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में करेक्ट है तो आपके पास में मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सिंपल मतलब ये है, आपकी कुछ प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटर के पास में नहीं है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में प्रेफरेंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, you have gone to appear in an interview in some company, XYZ company. Now the company has laid the criteria. The criteria is very clear that you should have very perfect communication skills, and second is you should have perfect presentation skills. So everyone has written that I have perfect communication skills, I can read, write and speak English, and I'm very much comfortable in this particular language. But पूजा ने और सोजी ने वहां पर अपने रिज्यूमे में एक और स्किल हाईलाइट की, दैट दे नो द फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, जर्मन या रशियन या स्पेनिश। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी और अगर उसके कस्टमर्स या उसके क्लाइंट अगर फॉरेन कंट्री में होंगे तो ये कंपनी इन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देगी, because they also know the English, apart from that they know the foreign language. It means these candidates are having the competitive edge over the other competitors or over the other candidates, and their chances of selection will be far higher as compared to others. तो ये होता है कॉम्पिटिटिव एज। इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्यों करना है? टू हैव द कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, कि लोगों को क्या चाहिए। आज अगर अंतेश्वर को सुबह दाल चावल पसंद है तो अंतेश्वर 2 साल तक वरण भात नहीं खाएगा। अंतेश्वर की डिमांड और अंतेश्वर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। अंतेश्वर, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें कैंडी, चॉकलेट्स और ये सारी चीजें पसंद थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो तुम्हें चीजें अलग पसंद आने लग गई। अभी और बड़े हुए हो तो तुम्हें और चीजें पसंद आने लग गई हैं। लेकिन जब तुम 60 साल के होगे तो तुम क्या अखरोट खा पाओगे? Just making a sense with the example which I am giving, that with every age group, with increasing in age or with the change in the demography, with the change in the work culture, with the change in the environment, with the change in the neighbors, with the change in the society, your consumption pattern, your buying behavior will also tend to change, right? आज फॉर एग्जाम्पल, आज आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पर रात में 8 बजे सब लोग घर में सो जाते हैं, ठीक है? अभी आप सिटी में आ जाओ, सिटी में अभी ये कोविड का अगर ये टाइम नहीं होता तो बैंगलोर, पुणे, मुंबई, यहाँ पर रात में भी आपको चालू मिलेगा। तो आपका हैबिट चेंज हो जाएगा। जो आप 8 बजे सो जाते थे, हो सकता है कि आप रात में 9 बजे आप आपका खाना ऑर्डर करोगे और 10 बजे, 10:30 बजे आप बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ में खाओगे। तो ये क्या है, आपका बाइंग पैटर्न चेंज हो गया। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से क्या होगा, जब स्विगी एंड जोमेटो लाइक कंपनीज, इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड which are the peak hours, they will collect all the information from various areas, and based on the area wherein the peak demand is there during that particular hour, they are going to put maximum thrust and maximum attention will be given in that particular area, right? So ये होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फायदा। जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ही अच्छा है। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे कुछ लोगों ने बोल दिया कि कोविड जो है वो छूने से नहीं फैलता। बाद में लोगों को पता चला कि कोविड तो हवा से भी फैलता है। बाद में आइसोलेशन चालू हो गया। अभी ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में नहीं होती तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका होता था। तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी ने क्या किया? प्रोडक्ट लॉन्च किया, N95 मास्क। ये N95 मास्क क्या था? उन्होंने वायरस का थिकनेस चेक किया और उस थिकनेस को चेक किया कि वो पर्टिकुलर वायरस जब आप मास्क पहनते हैं तो कितने थिकनेस के मास्क को वो पार नहीं कर सकता। तो उनको पता चला कि 95.95 माइक्रोन का अगर आपने ये मास्क बनाया तो उसको ये वायरस जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता।
तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और आज उसी वजह से उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। अगर वो एक ऐसा मास्क बना देते जिसको पहनने या ना पहनने का कोई फायदा ना होता, तो क्या ओंकार, हरीश भाई, आप, अंतेश्वर जी, आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदते जिसकी वजह से आपको कोई फायदा ही ना हो, राइट? सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डू यू एग्री? Okay. Now the next point is Yes, sir. marketing planning. Yes, please. हेलो, हाँ सागर जी, कुछ बोलना चाहते हैं? Yes, sir. जी बोलिए। हेलो हेलो। Okay, I leave it up to you, but if you have any questions, you can even type on the chat box also. The next important function of marketing is marketing planning. Now, I just want to tell you very important thing. If you fail to plan on time, then you are planning to fail. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है इंग्लिश में, इफ यू फेल टू प्लान ऑन टाइम देन यू आर प्लानिंग टू फेल। आज अगर आपने समय रहते प्लानिंग नहीं की किसी भी चीज की, चाहे वो करियर प्लानिंग हो, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, शादी की प्लानिंग हो, तो आने वाले टाइम में आप जो भी करोगे उसमें आपको फेलवर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपको टाइम पे प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वाई मार्केटिंग प्लानिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. नाउ मार्केटिंग प्लानिंग कवर्स वेरियस aspects: planning about the product, planning about the location where to launch the product, what would be the distribution channel, what would be the pricing strategy, what would be the promotion based strategy. All these things will be covered under the planning aspect, and based on the planning the company will make the strategies, and strategies will set the goals of the organization, the short term goals as well as the long term goals of the organization. The third and the important point is product design and development. Now many of you who are working in the engineering goods company or in manufacturing companies, you know that there is a dedicated department which is called as research design and development department. The main objective of this particular department is to constantly innovate the product, come up with some alternative product which is of better quality, which is having better features, and it is going to cut down the cost also. Now let's take an example. आपने पंखे देखे हैं, पुराने जमानों के पंखे? जो पहले के पंखे आते थे कितने हैवी हुआ करते थे, और उसमें कैपेसिटर लगा होता था, 2.5 से 3 किलो की उसमें कॉयल भरी जाती थी कॉपर की। लेकिन अगर आज आप अपने घर का सीलिंग फैन देखोगे, उसमें नॉट मोर देन 200 ग्राम्स कॉपर होता है, और कैपेसिटर भी उसमें बिल्कुल हल्का हो गया है। पहले कैपेसिटर आता था एल्युमिनियम के कवर में, आज कैपेसिटर आ रहा है प्लास्टिक के कवर में। सो ऑल दीज थिंग्स आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। सो जी क्या हो गया, सिर दर्द हो रहा है? यू आर हैविंग हेडेक? ओके, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए कि आप वॉल्यूम कम करके सुना करिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के कंटिन्यूस लेक्चर्स होते हैं और मैं बहुत जल्दी वेट कर रहा हूँ 15 तारीख कब होगी और आप लोग कॉलेज में आएंगे। ओके, सो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में आप जीन्स का केस ले लीजिए, डेनिम जीन्स का। एक टाइम था बिल्कुल प्लेन डेनिम जीन्स आती थी, राइट? आज आपके पास स्ट्रेट फिट है, मिड राइज है, राइट? उसके बाद आपके पास टॉर्न जीन्स है, देन स्लिम फिट है, अल्ट्रा स्लिम फिट है। ये केवल एक डेनिम जीन्स का एग्जांपल है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पॉसिबल हुआ। टीवी के केसेस में ले लीजिए, पहले घरों में लोगों के ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। देयर यूज्ड टू बी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स इन एवरी फैमिली, और लोग हाथ जोड़ के बैठ के देखते थे कि रामायण आ गई, महाभारत आ गई और आके अभी देखना है। और आजू बाजू के घरों में टीवी नहीं होता था तो सबको बुला लिया जाता था कि आ जाओ, और एक ही घर में 2-2.5 लीटर चाय बनती थी और सब लोग पीते थे। बट आज क्या हो गया है, आज आपके पास में स्मार्टफोन्स हैं, सब कुछ आपके स्मार्टफोन में आ गया है, आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द ओटीटी प्लेटफॉर्म, थ्रू द एप्स। तो ये सारी चीजें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हुई हैं, राइट? पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, मूवी देखने के लिए, पर्सनल एक्सपीरियंस लेने के लिए थिएटर्स में जाना पसंद करते थे। आज आपके पास में वो वीआर आ गया है, उसको आंखों में लगा लीजिए, पहन लीजिए, और आपको 3D व्यू मिलेगा, घर बैठे ही 3D मूवी देख सकते हैं आप, राइट? सो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। टीवी में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के बाद आया एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, एलसीडी के बाद एलईडी, अभी आपके पास अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी आ गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले के टाइम पे जो आप ग्लासेस पहनते थे, मैं सामने देख सकता हूँ, सागर जी, ओंकार जी, आप जो ग्लासेस पहने हुए हैं,
वो बिल्कुल प्लेन आते थे। आज की तारीख में ग्लासेस में भी ब्लू कट टेक्नोलॉजी आ गई है, ब्लू कट के साथ आपका एंटी ग्लेयर आ गया है, राइट, एंड ड्राइव सेफ मोड आ गया है। तो ये सारी चीजों को इसी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया गया है। और एक ही कस्टमर को जिसको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एक ही प्रोडक्ट के थ्रू आपने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, राइट मोनिका? सो व्हाई आई एम गिविंग मोर पॉज ऑन एवरी पॉइंट, बिकॉज my objective is not to read the PPT for you. My objective is to make it clear that whatever point I'm covering, you should have at least 3 to 4 examples to understand and to write in the examination. And if at all you get an opportunity in the interview, you should have n number of examples in your mind which you can speak up. ठीक है? So the next point is standardization and grading. Yes, it is the task of the marketing persons to do the standardization and grading. For example, automobile vehicle, you have lower end model VXI, VDI, so LXI, LDI, then VXI, VDI, and ZXI and ZDI. Then if you go in Nexa showroom, you have Zeta, Alpha. These kind of variants are there. If you buy even rice also, राइस हैज गॉट वेरियस ग्रेड्स, ए ग्रेड, बी ग्रेड, और ये सारी चीजों को आपको पता है। तो ये ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना ये इनका काम होता है। ज्वेलरी के पास आप जाते हैं, गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड, प्योर 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 19 कैरेट गोल्ड, जिस तरीके का आपका बजट है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इवन 1 ग्राम गोल्ड के भी बेंटेक्स के ज्वेलरी आते हैं मार्केट में। तो ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। क्यों किया जाता है? बिकॉज हर कोई कस्टमर, every customer will not be able to afford the 24 karat gold, and every customer will not like wearing 24 karat gold always, even if the person is able to afford it, right? So this is called as standardization and grading. The next and important aspect is packaging and labeling. Now पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे मेरे पास में बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंपनीज क्या करती हैं, जो छोटा सैंपल निकालती हैं उसका प्राइस नॉर्मली कम रखती हैं, और आप उसमें जो भी प्रोडक्ट है उसके टोटल ग्राम्स को अगर कैलकुलेट करेंगे, जो फाइनल उनका जो बड़ा प्रोडक्ट आता है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो सैंपल आया है, जो छोटा पाउच आया है, सैशे है, उसका प्राइस काफी कम है। इसके ऊपर केस स्टडी है और ये मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज इट ऑल कम्स अंडर द सैम्पलिंग एंड एडवर्टीजमेंट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विद यू लेटर ऑन। सो पैकेजिंग, अभी आज आपने देखा कि आप मैगी के ब्रांड को दूर से ही अगर वो शेल्फ में कहीं लगा हुआ है, आपको दिख जाता है कि मैगी वहां लगी हुई है। कैसे आइडेंटिफाई किया? थ्रू द पैकेजिंग। थम्स अप, कोका कोला, just by looking at the label you can identify this particular brand very easily from that of the distinguishing competitors, right? एप्पल का फोन हो, कहीं पर भी रखा होगा, सैमसंग का फोन हो कहीं पर भी रखा होगा, आप केवल लोगो देख के समझ जाएंगे कि ये सैमसंग का फोन है, ये एप्पल का फोन है, राइट? तो ये जो पैकेजिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद की भी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग कैसे करनी है? आपकी जो भी स्किल्स हैं, एटीट्यूड हैं, हैबिट्स हैं, उसको इस तरीके से आपको पिक्चराइजेशन करना है अपने रिज्यूमे में कि वो एक पावर पैक्ड रिज्यूमे लगे, लोगों को देखते ही समझ में आ जाए कि बंदा बहुत टैलेंटेड है। और ये आपको काम करना है। पैकेजिंग आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि लोग देखते ही कह दें कि मुझे लेना है तो कुणाल को ही लेना है, कुणाल के अलावा कोई और नहीं, राइट? देखो कुणाल को हंसी आ गई। सो आई विश कि आप सब लोगों को एक अच्छी जॉब मिले, बट what I wanted to tell you is there are companies which are very much focused on packaging. Now I'll give you an example, and believe me, this is one of the fantastic example. The most expensive scotch of the world, most expensive scotch that comes for 13 crore rupees, एक बॉटल स्कॉच की 13 करोड़ रुपए की आती है, और उस स्कॉच की बॉटल का जो पैकेजिंग है वो है 50 लाख रुपए का। कैन यू इमेजिन? 50 लाख रुपीस, और वो प्लेटिनम की है, डायमंड स्टडेड है, और गोल्ड से केसिंग की हुई है उसकी। क्यों कंपनी ने एक 13 करोड़ की बोतल को 50 लाख की पैकेजिंग में रखा? टू गिव द फीलिंग ऑफ रिचनेस एंड प्रीमियमनेस। दैट्स व्हाट द पैकेजिंग मीन्स। अगर आज टाटा टी आप लेते हैं, ताजमहल को भी एक पाउच में अगर कोई सेल करने लग जाए, तो क्या आपको लगता है कि ताजमहल की उतनी वैल्यू होगी? नो। So the packaging really plays a very vital role and crucial role in attracting the customers. Now packaging में आपको ये डिसाइड करना है कि अगर मोनिका को केवल एक छोटा सैशे लगता है अपना
जिंजर एंड गार्लिक का खाना बनाने के लिए एक पूरे वीक में, तो मोनिका 200 ग्राम्स की बोतल क्यों खरीदेगी? इसलिए मोनिका जैसे कस्टमर्स के लिए मार्केट में छोटे सैशे निकाले जाते हैं, राइट? कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं सैशे क्यों खरीदूं बार बार, क्योंकि मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, मैं डेली डेली कहाँ से लाता पड़ूंगा। तो उनके लिए फैमिली पैक आते हैं। मैगी में भी फैमिली पैक है, आपने देखा आज एक हर एक प्रोडक्ट में आपको फैमिली पैक मिलेगा। आइसक्रीम में भी आपको फैमिली पैक मिलता है, राइट? कॉस्मेटिक ब्रांड्स में भी आपको दिखेगा बड़ा पैक आ जाता है, टूथपेस्ट का हो या आपका क्रीम हो, उसमें आपको बड़े पैक आ जाते हैं, राइट? तो ये मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज पैकेजिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। You have to target your potential customers by doing a packaging and labeling। क्या होता है? labeling gives the information about the product, कि ये प्रोडक्ट है कहाँ, क्या है, इसको कैसे यूज करना है, when to use the products, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर एक क्रीम है जो बच्चों को नहीं लगानी है, अगर उसमें लिखा है तो लेबल की वजह से ही आपको पता चलेगा कि आपको ये क्रीम बच्चों को यूज नहीं करनी, राइट? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ब्रांडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। नाउ ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी जैसी ब्रांडिंग की उसी तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स are considered as the highly valued brands by the mothers, especially in India. Now if you come up with another brands, now we have already Patanjali baby products, we have Himalayan baby products, but the brand value and the brand equity of Johnson and Johnson baby product is really very high as compared to Patanjali, Himalaya and other competitors. So you have to constantly involve in engaging the customers and give them something that is called as emotional engagement। and एक चीज हमेशा याद रखना, कस्टमर हमेशा एक्सट्रीम फीलिंग को याद रखता है। एक्सट्रीम फीलिंग देने के लिए आज क्या कर रही कंपनीज, एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा दिखा देंगी कि जिसकी वजह से लोगों को वो चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इंपीरियल ब्लू। इंपीरियल ब्लू का जो एडवर्टीजमेंट आता है, मेन विल बी मेन, वो आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी ने देखा होगा, राइट? तो उसमें क्या दिखाते हैं कि वो बंदा जो है वो एक ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करा रहा है, और उसके बाद वो देखता है कि साइड से एक मैडम निकल रही हैं, तो उनको देखते हुए वो टर्न हो जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम इमोशनल एंगेजमेंट है, एक्सट्रीम फीलिंग है जो लोगों के दिमाग में कैप्चर हो जाती है। लोग छोटी मोटी चीजों को याद नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, मोनिका, क्या आपको याद है कि आज ही के दिन 9th ऑफ February 2020 को इस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? नो सर। नो। ओके। लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि आपकी बर्थडे के दिन आपने क्या किया, आपके घर में गेस्ट आए थे तो आपने क्या किया, आपने जब आउटिंग गए थे तब आपने क्या किया। सो व्हाट इट मींस इज यू ऑलवेज रिमेंबर द एक्सट्रीम इमोशंस। एक्सट्रीम इमोशंस। और कंपनी क्या कर रही है आजकल, आपको एक्सट्रीम इमोशंस में एंगेज करने की कोशिश कर रही है। उनको पता है नॉर्मली अगर आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए इमोशनल बना देंगे तो आप हमेशा के लिए उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, और यही एक्सट्रीम इमोशनल एंगेजमेंट पे काम चालू है। कॉस्मेटिक ब्रांड्स क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं। आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की आज वेबसाइट पे सभी लोग जाइए, आपको दिखेगा वहां पर दे आर आस्किंग द कस्टमर्स, द मदर्स, हाउसवाइफ्स एंड द लेडीज टू गिव द रेसिपी फॉर good health. They are asking for the tips for improving the beauty, like they are asking for the tips to remove the acne, pimples and other things। तो ये क्यों पूछ रहे हैं, इससे कस्टमर इंगेजमेंट हो रहा है, प्लस लोगों के दिमाग में भी जाता है कि यार कंपनी ने हमारी चीजों को अपने वेबसाइट में डाला, इंपॉर्टेंस दी, इसका मतलब क्या है, आप कनेक्ट हो गए कस्टमर्स, राइट? तो एक्सट्रीम इमोशनल इंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आज हर कोई ब्रांड, अभी आप किसी होटल में भी अगर आज विजिट करते हैं, अभी तो कोविड का टाइम है, अगर आप एक अच्छे होटल में विजिट करते हैं, आप देखोगे आपके साथ में अगर कोई बच्चा है, तो जब आप बिल दे रहे होगे, एट द टाइम ऑफ पेइंग द बिल, एट द टाइम ऑफ चेक, you will find that the waiter or the manager will hand over some chocolates along with the balloon to the child who has come along with you। So this has come as a practice, because जब आप जाते हो तो वो बैलून आपके दिमाग में रह जाता है कि यार मैं लास्ट टाइम गया था, मेरे बच्चे को उसने बैठा के उसने बैलून दिया और उसने चॉकलेट दी। सो ये क्या है, इमोशनल इंगेजमेंट। आज आप गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे गाड़ी लेनी है, आप किसी शोरूम में एंटर होते हो, वहां एंटर होने के बाद आपको पहले तो वहां का जो दरबान है उसने आपको झुक के सलाम किया, अंदर आते ही आपको एक अच्छी सी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने आपको बैठाया, आपसे बात की, आपको कॉफी आई,
उसके बाद आपसे पूछा गया आप जूस लेंगे क्या, और उसके बाद आपको एक राजा महाराजा और रानियों की तरीके का ट्रीटमेंट मिला और आपको गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स बताए गए और बिल्कुल अच्छे से आपसे बात की गई। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सट्रीम इमोशनल एंगेजमेंट है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केटिंग में केवल आप प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, आपको ये सारी चीजों पे फोकस करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस, इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। अभी ये टॉपिक आया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ब्रांडिंग करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। आपको प्रोडक्ट पे भी फोकस करना है, आपको प्रोडक्ट के फीचर्स पे भी फोकस करना है, एंड देन यू शुड हैव द इमोशनल इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कस्टमर सर्विस सपोर्ट। आपके केस में अभी आप देख लीजिए, कस्टमर सर्विस, डेबिट कार्ड आपका है, आप बैंक में एटीएम में लगा लगा छोड़ा है, दोबारा जाके आप देखते हैं तो आपका डेबिट कार्ड गायब है। आप इमीडिएट क्या करेंगे, यू विल कॉल द कस्टमर केयर एंड यू विल हॉटलिस्ट द पर्टिकुलर कार्ड बिकॉज you have the fear that someone else might use that particular card. So in order to avoid that situation, you will immediately call the customer care. Now assume a situation, a scenario where the customer cares are not picking up the phone. What will happen? You will undergo the tremendous amount of stress by the time the card is not been hotlisted by the customer care. So customer service support is required to be given to the customers 24/7 round the clock, because you don't know when the customer will face such kind of problems, right? So customer service support is very essential and it is a part of marketing. While it is not there in selling activity, but it is considered as a part of selling as well, because after sales services are being given by the companies in the form of installation, in the form of demo, in the form of attending the customer complaints. So it is very much important. The last point is physical distribution. Now physical distribution means physically distributing the goods and services from the buyer, from the seller to the buyer. Physically distributing the goods and services from the manufacturer end to the consumer's end. It means the goods and services are flowing from the manufacturers to the customers. And this is called as physical distribution because the title and the ownership that transfers from the manufacturer to the customers. So these all aspects are considered under marketing, and in this physical distribution you have supply chain management. So supply chain management is also an essential part of marketing activity, because supply chain management ensures to deliver the right product of right quality to the right customer at right time and at right place. I repeat, supply chain management ensures delivering the right product of right quality to the right customer at right time at right place. So this is what called as physical distribution. Now coming to the next slide, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब हम मार्केटिंग क्यों पढ़ें, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कल बताया था, टू नो द कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। अब एक डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कंज्यूमर एंड कस्टमर के बीच में। आप आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं, कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जरूरी नहीं कि वो खुद के लिए उसको प्रोडक्ट को यूज करें। वेयर एज कंज्यूमर्स आर द वंस हु आर द एंड यूजर फॉर द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में माँ के लिए आप दवा लेके गए तो आप हो गए कस्टमर, माँ कंज्यूम कर रही है तो माँ हो गई कंज्यूमर। आप आपकी बहन के लिए, माँ के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेके गए कि मम्मी के लिए कोल्ड क्रीम लेके जाना है, बहन के लिए कोल्ड क्रीम लेके जाना है, आप हो गए कस्टमर, माँ और बहन आपकी हो गई कंज्यूमर। सो कस्टमर एंड कंज्यूमर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट because customers are the ones who buy the product and consumers are the ones who actually uses the product. When the marketing strategies are formulated in the company, that time the company gives attention towards the consumer needs and wants, because consumers are the influencers. They are the one who will influence the buying decision process. So you have to always consider the consumer in your मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रोडक्ट कुछ ऐसा ले लिया, फॉर एग्जांपल अभी अंतेश्वर ने अपने छोटे भाई को सोचा कि मुझे एक साइकिल गिफ्ट करनी है, और अंतेश्वर ने एक बड़ी साइकिल ले ली ये सोचकर कि वो साइकिल मैं भी चलाऊंगा, लेकिन उसका भाई उतनी हाइट नहीं है और वो साइकिल तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या उसके लिए वो साइकिल की वैल्यू होगी? नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस करना है कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स पे, उनके बिहेवियर पे कि उनको क्या पसंद है, कैसे पसंद है, कब पसंद है, कब कब वो यूज करते हैं, और ये स्कोप ऑफ मार्केटिंग है। देन प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या करते हैं बेसिकली, यू डिसाइड
when to launch the product, what should be the price of the product, what should be the features of the product, what would be the packaging of the product, what would be the brand name, logo, and identification of the product. So all such things will come under the product planning. Pricing policies are very important. As you can see in case of Apple, they have a premium pricing policy wherein the price of their newly launched product is being kept very high. It is also called as skimming pricing policy. Skimming pricing policy क्या होता है? दूध की ऊपर की जो मलाई है, मलाई मलाई खा लो, बाकी दूध बाकी के लिए छोड़ दो. आपको पता है दूध का सबसे ज्यादा जो प्रोटीन या फैट का जो कंटेंट होता है, जो सबसे ज्यादा रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स होता है, वो होता है उसकी मलाई. तो यहां पर कंपनीज क्या करती है, प्राइसिंग पॉलिसी अपने प्रोडक्ट को देखते हुए सेट करती हैं. अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम प्रोडक्ट कैटेगरी में है तो आप स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी रखते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस पहले हाई रखा तो एक उस मार्केट में जितना भी मार्केट शेयर है उसको ऑक्यूपाई कर लो, कैप्चर कर लो. भले ही आपने 100 कस्टमर को बेचा, लेकिन वो 100 कस्टमर आपको 1000 कस्टमर के बराबर आपको रेवेन्यू देंगे, बिकॉज उस मार्केट में आपका क्लोज कॉम्पिटिटर कोई नहीं है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत हाई है. Right. The next important part is distribution, promotion. Distribution and promotion everyone knows. If the product won't be available to the customer at right time at right place, what will happen? Next time you will not visit. I will give you an example that happened with me. Last year there was a birthday of my younger brother and we had ordered a cake, the 3-story cake from Baker's Basket a day before. What happened? I was supposed to pick up the cake the next day, but I was in the office, so I could not pick up the cake. And in the evening, I just gave a call and I just told the cake shop that I'll be reaching by 6 o'clock. Please keep my cake ready. He just told me okay. And he gave me a reply in affirmative. After visiting the outlet, I just realized that my cake was not ready and he had mistakenly made another cake which was of another customer who was having this particular order for the next day. In that particular moment of furiousness, I just started scolding him and I just told him ki you have just spoiled the particular occasion. So he, in that hurry, he just asked me for another 40-45 minutes. By that time, the friends and the relatives had already come and they had started calling me ki where are you? We are waiting for you, or please bring the cake at the earliest. So in that hurry, I just cancelled the order, took my money back and visited another shop, and then I just got the cake from there. From that time onwards, I decided I will not visit that cake shop in my lifetime. And that I have maintained even in the second year. So consumers get the lifetime experience and that impression about a product if it is not been delivered, if it is not been made available to them at the right time, at the right place. Right? Promotion is all about awareness, how you are creating awareness, and then how you are communicating about your product or service to the customers or to the consumers. Consumer satisfaction, it is very important. Now the scope of marketing is to constantly upgrade and products and services so that you can constantly get the customer satisfaction. And marketing control means overall activities, whatever I have discussed until now. If there is any particular scope of improvement, then through marketing control efforts, those things can be controlled and then you can increase the customer satisfaction level. Until now, is there any question from anyone? Please ask me openly in Marathi, Hindi or English. The session is open for you. Please ask me the questions. Soji? Please ask me the question if you have. Udesh, Harish, Monica, Suraj, Anteshwar, Sagar, Akshay, Asmita, Chaitali, Devendra. Please ask me the questions. अभी तक जो भी मैंने आपसे शेयर किया समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखिए मेरे पास में Yes, sir. ओके Yes, sir. कोई Yes, sir. क्वेश्चन? प्रियंका, पल्लवी, No, sir. Thank विनोद जी, विशांत पुजारी जी, योगेश जी, कोई डाउट नहीं अभी तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I have no doubt. ओके मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में इतना भरा हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे में आपको ज्यादा से ज्यादा दे दूं, और ये मेरी कोशिश रहती है कि आपको कितना हो सके मैं आपको कितनी नई चीजें बता दूं इतने कम टाइम में, जो आपको पूरे 2 साल में पढ़ना है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 1 घंटे में उसकी पूरी झलक दिखा दूं. राइट? थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. अभी आगे बढ़ते हैं.
Now the functions of marketing manager. Functions क्या होते हैं कि marketing manager की role में अगर आप कल को join करते हैं as a marketing executive, you will enter and then you may become a marketing manager, area service manager, regional manager, national head, general manager, and then you might become the CEO of the company also. So let us first of all understand the functions of a marketing manager. The first important function is determining the marketing mission. Yes, आपका mission क्या है, कहां जाना चाहते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज मिशन. आप कहां पहुंचना चाहते हो, लाइफ में आपको क्या बनना है, दैट इज द मिशन स्टेटमेंट. कैसे जाओगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव, राइट. सो मिशन स्टेटमेंट, देन प्लानिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम. हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग प्रोग्राम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ले लीजिए. अंडर हिंदुस्तान यूनिलीवर there is a FMCG segment. Now under FMCG segment there is household care segment, personal care segment, food and beverage segment, and over the counter. Now in case of household care segment there is Rin Shakti, there are detergent powders and other things. Then personal care segment they have cosmetic brands, food and beverages they have food brands, right? So for every particular product the marketing planning and the program will be entirely different. जिस तरीके से आप डिटर्जेंट पाउडर बेच रहे हो उस तरीके से आप परफ्यूम नहीं बेच सकते, राइट. और जिस तरीके से आप परफ्यूम बेच रहे हो उस तरीके से आप नूडल्स या आपके बिस्किट नहीं बेच सकते, राइट. सो मार्केटिंग प्लानिंग जो भी होती है दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द प्रोडक्ट. एंड आपको आज मैं बता देना चाहता हूं कि मार्केटिंग में अगर मैंने बोला प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट इंक्लूड्स बोथ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. If I say product, it means I am considering both, and in general, you say that it is product, it means it considers both the virtual things and non-virtual things, the tangible things and the intangible things. The next important point is coordinating all the activities. Now, marketing person has to coordinate amongst the HR department because the HR department will recruit the right talent, the right people for the right job. सपोज करिए एक साइकिल बनाने वाली कंपनी को एक ऑर्डर आता है कि उसको पहले 3 महीने में बच्चों की साइकिल डिलीवर करनी है, उसके बाद के 3 महीने में स्पोर्ट्स साइकिल डिलीवर करनी है, उसके बाद के 3 महीनों में वुमेन्स के लिए साइकिल, एंड देन फाइनली जेंट्स के लिए. तो ये जो 3 महीने का पहला जो पीरियड है जिसमें किड्स के लिए जो साइकिल बनानी है, आपको वही लोग चाहिए रहेंगे प्रोडक्शन टीम में जिनको किड्स की साइकिल बनाने का एक्सपर्टीज हो या एक्सपीरियंस हो. तो उस हिसाब से आपने एचआर से कोऑर्डिनेट किया. नेक्स्ट आपको पता चलता है कि कितना ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से एचआर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताता है कि अभी हमको शिफ्ट बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी. बढ़ा के आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है बिकॉज यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट इन राइट टाइम, otherwise the payment will be held up, right? Invoice will not be generated and the customer will not be able to pay the amount on time. So ये सारी चीजों के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी रोल है बिकॉज फाइनेंस डिपार्टमेंट विल डू द बजटिंग, परचेज डिपार्टमेंट विल डू द परचेज. Based on that, the production department will start production. Stores department will understand what is the inventory lying in the organization in the form of raw material, work in process, and the finished goods. Then warehouse department will also give the details. So in that way, the marketing department will coordinate with all the departments and with all the activities that takes place in the organization. Without proper coordination, without integration, the particular objective of profit cannot be achieved. Now, organizing the selling function vis-a-vis the advertising function. Yes, it is very important for the marketing manager to organize the selling function in such a way that whatever advertisement you are giving, that product should be available on the counter, that product should be available to the stores, that product should be available in the market. Otherwise, if you have shown the advertisement and the product is not available in the market, the customer will just switch to some other substitutes. The next important point is reviewing the competition and product position. Yes, every time you have to review your competition. There was a time wherein Maruti 800 was #1 brand in India. But slowly, lot of other competitor had entered in that hatchback segment. Today, Maruti 800 is no more in competition. After 800, they had launched Alto, then they had launched Gen, then they had launched Swift. There are n number of brands which have been launched by Maruti. So every product has got their particular competition, and with that competition, their position in the market also keep changing. Take an example of Apple iPhone. When they launched Apple 4S, today Apple 4S is not in the market, although that was one of the fantastic product.
So you have to constantly review the competition. Based on the competition, you have to change the product strategy, right? The last point is establishing the resource allocation. Yes, you have to allocate the resources in such a way that if a given market is giving you lot of business, then more attention to be given to that market. If a given market is giving you less amount of business, then less amount of stress and less amount of resources to be deployed. If you deploy more resources in that market wherein the business is very low, probably you will end up in increasing the overheads of your organization, and in that way the marketing efforts will not be profitable for your organization. So overall, marketing manager has to look after all these things. Now I end up the session over here right now, and I open the session for your questions and answers. You please ask me the questions in case if you have any doubts, and if not, you please share with me the feedback of this session. The session is open for you. Sir, Yes, sir, please. I want to know about more of in Fourth point option. of function, fourth point of function of What was marketing. that? What was that? Organizing the selling function, vice versa the Okay. advertising functions. Okay. Selling function vice versa. Okay. Now suppose आज आप घर पे if you are sitting in front of the TV and you are watching a particular web series, for example. Now in that web series, during that particular break, or in that particular web series, if you are seeing that particular advertisement of any product, let's take an example of cosmetic product, और इमीडिएटली आपको लगता है कि ऐसा भी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आया जिससे अंडर आई जो डार्क है वो डार्कनेस चली जाए, डार्क सर्कल चले जाए, तो आप क्या करोगे? आप जाके मार्केट में उसको इंक्वायर करोगे, और अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? जो भी अटेंशन क्रिएट किया है, एडवर्टीजमेंट का बेसिकली पर्पस क्या होता है? AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है टू कैच द पब्लिक अटेंशन, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करता है, वो लोगों में इंटरेस्ट आता है तो वो चेक करते हैं उसको, ऑनलाइन या ऑफलाइन चेक करेंगे, एंड देन डिजायर में कन्वर्ट करता है, लोगों के मन में फीलिंग आती है कि चलो मैं भी ट्राई करता हूं, ठीक है, एंड देन एक्शन क्या होता है? आप परचेस करते हैं। पतंजलि का सौंदर्य क्रीम हर न्यूज चैनल में आता है, बिकॉज दे हैव द स्ट्रेटेजी टू डू द एडवर्टीजमेंट ओनली ड्यूरिंग द कमर्शियल ब्रेक्स ऑफ न्यूज चैनल। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। पतंजलि के ऐड आप मैक्सिमम न्यूज चैनल में ही देखेंगे, उसके अलावा आपको किसी भी कमर्शियल ब्रेक में किसी भी वेब सीरीज में नहीं दिखेंगे, राइट? सो ये उनकी स्ट्रेटेजी है। अगर उन्होंने पतंजलि सौंदर्य क्रीम ने अपना एडवर्टीजमेंट दिखाया ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको नहीं दिखता, तो क्या होगा? जो भी अटेंशन क्रिएट हुआ वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सो मार्केटिंग एफर्ट विल बी हैंड टू हैंड विद द सेलिंग फंक्शन एंड विद द एडवर्टीजमेंट फंक्शन। जो भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट रखना है। जैसे एंड ऑफ सीजन सेल का एडवर्टीजमेंट आ गया लोकल केबल चैनल में, फिनिक्स मॉल इन पुणे इज हैविंग एंड ऑफ सीजन सेल 50% ऑफ। अब आपके दिमाग में आ गया कि चलो एंड ऑफ सीजन सेल है, चलो जाके देखते हैं, लेकिन वहां पर आपने जाके देखा कि अरे एंड ऑफ सीजन सेल तो स्टार्ट ही नहीं हुई। ऐसा जनरली होगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस 1% भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? आपको होगी यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, राइट? अभी ये सारी चीजें हैं। अब मैं इसमें एक और एग्जांपल दूंगा, आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी रिसेंटली ब्रांड फैक्ट्री में एक स्कीम चल रही है, आप आपके पुराने कपड़े लेके जाइए एंड अप टू 500 रुपीज का आप एक्सचेंज वैल्यू पा सकते हैं। आप जो भी कपड़े खरीदेंगे उस पर 500 रुपीज तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी कस्टमर जा रहे हैं अभी ब्रांड फैक्ट्री में, पिंपले सौदागर में भी है, आप लोग जरूर जाइए। तो वहां पर जाने के बाद आपके पुराने कपड़े दे दीजिए, आपको वो एक कूपन देगा, वो 500 रुपीज आपका जो भी शॉपिंग का अमाउंट होगा उससे डेबिट हो जाएगा। तो ये चीजों को लेकर काफी काफी उत्साह था लोगों में, काफी एंथुसियास्टिक थे, क्योंकि लोगों के पास में बहुत सारे कपड़े हैं, अब वो एक्सचेंज कर रहे हैं और हर कपड़े के ऊपर उनको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, उसके बेसिस पे वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट ब्रांड फैक्ट्री ने अपना न्यूज़पेपर्स में निकाला था। न्यूज़पेपर में कब निकाला? संडेज को निकाला, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शॉपिंग करने आए। और जब वो एडवर्टीजमेंट लोगों ने देखा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? SMS कैंपेनिंग भी की, उसके बाद उन्होंने लोकल केबल चैनल्स को भी दिखाया, तो उसके बाद वहां पर रश बढ़ गया। अगर यही वो कैंपेन वहां पर उसको सपोर्टिव ना होता, और उधर वहां पर कहीं लगा ना होता कि गेट अप टू 500 रुपीज ऑफ ऑन द ओल्ड क्लोथिंग्स, तो कस्टमर वहां जाने के बाद क्या कहता कि अब ये पुराने कपड़े मैं कहां डालूं, right? So marketing function is always supportive in nature. Whatever activities you are doing, that is being always supportive, right? अभी सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट फंक्शन एक और एग्जांपल है। अभी अब आज आज की तारीख में अगर आप इस पे
विस्तारा में ट्रैवल करते हो तो विस्तारा की टिकट के पीछे जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है, आपको शारदा यूनिवर्सिटी का एक एडवर्टीजमेंट दिखेगा। ये शारदा यूनिवर्सिटी ने इसके साथ में टाई अप किया हुआ है। अब लोग बैठे बैठे क्यूआर कोड को स्कैन करते वक्त, जब बैठे अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया और पूरा शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो कुछ भी है वो वीडियो के थ्रू उनको पता चल रहा है। इमीडिएट उसमें वो वहाँ पे चैट बॉक्स आ जाता है और उनका वो जो रोबोट है वो आपसे पूछता है कि मे आई हेल्प यू, डू यू नीड एनी असिस्टेंस। तो इस तरीके से कंपनी उससे कनेक्ट हो गई। सो एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग फंक्शन विल गो हैंड टू हैंड। सेलिंग फंक्शन क्या है? कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, वो चैटबॉक्स के थ्रू या ह्यूमन बीइंग इंटरफेस, मशीन ह्यूमन इंटरफेस के थ्रू वो कस्टमर तक पहुंचाई जा रही है। क्लियर हुआ आपको पल्लवी? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, हाँ, sir. ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? ओके, तो मैं आज का सेशन एंड करना चाहता हूं एक गोल्डन स्टेटमेंट से आप लोगों के लिए। अगर उड़ना है आपको तो अपना नया आसमान ढूंढो। अगर उड़ना है आपको तो अपना नया आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग हमेशा अपनी नई पहचान ढूंढो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या बात है सर, क्या थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Have a great ओके, day. Have a great day, sir. Bye. थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। Thank you, sir.